हेलो एंड वेलकम टू साइबर हीरो। आज जो हम देखने वाले हैं पढ़ने वाले हैं वो प्रोसेस मैनेजमेंट कमांड्स। अगर आपने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे प्रोसेस मैनेजमेंट, हमें थ्योरी में बताया क्या चीज़ है प्रोसेस, प्रोग्राम क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, डायग्राम की मदद से मैं तुम लोगों को समझा। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, go on my channel and check. It will be in this same playlist, the same playlist. Go and check that video first, after that come here. So because it will make more sense and you will get easily understand. So today we are discussing about process management commands. Process management commands, let me tell you first what's a process. It's just simply running an instance of a program. For example, when you open Firefox, a Firefox process starts. That is called a process. Linux manages thousands of processes at a time. We often need to monitor, control, and manage them. Are you getting it? It manages thousands of processes at a time. We need to manage, monitor, control them. When we, if I will talk a particular situation, when we run a heavy script on our OS, that time we need to monitor it, control it, because maybe our system will get freeze, right? So that time we need to monitor these processes. So common process management commands. Here are some detailed. PS to we will something practical with practical. No worries. What does the PS do? How? So let's go for practical session without wasting our time. Get ready. First command is PS. What will it do? It stands for process states. It stands for process states. If I will enter, simply hit enter PS. So these are, if you remember PID, what it stands for? Process ID. So these are the process ID which are running 482, 444, So CMD, how they come under the execution. Sudo here, SU here, ZSH here, PSH here. By entering PS, the PID of the process 53333 comes under execution purpose. Hope so it is clear. CMD means command that started it. PID means parent. So process ID. Why I'm getting some useful variation. If I will use like PSE, look, अरे बाबा, आप कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपल सी बात है। ये सब के सब प्रोसेस बताएगा, ठीक है ना। देखो कितनी सारी प्रोसेस है अभी। चलो हमें क्या लेना देना, तो हमें बस बताना। और अनदर एक चीज है, पीएस ही है, फुल फॉर्मेट लिस्टिंग यूजिंग यूजर पेरेंट प्रोसेस ETC। आप देखो क्या चाहिए। ये मैंने किया, एंटर दबा दिया, ये देखो रूट, ये मेरा नॉर्मल यूज़र है, ये मेरा रूट यूज़र है, ये मेरी प्रोसेस आईडी है, ये मेरी पेरेंट प्रोसेस आईडी हो गई। ये किस कमांड के जरिए एग्जीक्यूशन के अंदर आ गई। ये जो मैंने अभी दबाया PS, ये रूट में शुरू कर दिया, इसका ये आईडी है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ये टाइमिंग है। तो ये सेम है। अब मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ प्रोसेस स्टेट से जरिए। मैं यहाँ पे यूज़र नेम लगा दूंगा, रूट में चेक करना चाहता हूँ रूट में कौन कौन से चेक। देखो भाई साहब, look at the result. These are the processes which root creates which root tries to execute. It's clear now. Why uh, why you can use this PS? Why to use it? Is it really useful to you or not? So to quickly check if program is running or not, lightweight and fast one-time checks. For example, let me fill in Firefox. Then I open again. ठीक है ना, मैं Firefox ओपन किया, मैं इधर। अब मैं सेलेक्ट करूँगा PS। यस, ये है उसी, अभी फायरफॉक्स का है, वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
ये कैसे चेकआउट करते हैं फायरफॉक्स की प्रोसेस करना। तो क्या सीन है, PS मैं ग्रिप कर लेंगे इसको। ये अब ग्रिप नहीं हुआ, हमसे कोई गलती हुई क्या? गलतियाँ हो सकती है, इसमें कोई बात। ये ले जी भाई, फायरफॉक्स ने जो प्रोसेस क्रिएट कर दी, ये सब मामला तुम्हारे सामने। तो ये समझ नहीं आएगा, समझने की जरूरत भी नहीं है, बस हमें चेक करना था फायरफॉक्स ने क्या क्या प्रोसेस की। ज़्यादा ध्यान भी नहीं देने, कंफ्यूज हो जाए। तो ये रहा, विंडोज़ ने शुरू कर दिया है प्रोसेस आईडी वगैरह, कहाँ पे यूज़र लिव फायर एक्स या ये है इसकी पाथ वगैरह, पेरेंट ड्यूल आईडी। ठीक है ना जी? तो लेट्स क्लियर मशीन। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं टॉप कमांड। Display the dynamic real time of process like task manager in Windows. ठीक है, this is PID process ID. This is a user who creates this ID who tries to execute it. ये सब चीज़ें हमें इसमें, ये रहा टाइम, ये कितना CPU यूज़ कर रहा है, ये कितनी मेमोरी खा रहा है, पूरा डिटेल में कौन कौन सा रिसोर्सेज कितने यूज़ कर रहा है। जैसा कि सीन है, जैसा टास्क मैनेजर होता है ना विंडोज में, जैसा हम प्रेस करते थे शायद कंट्रोल शिफ्ट उसके बटन करके, लेकिन ट्राई। हाँ ये विंडोज टास्क मैनेजर, ठीक है। सेम टास्क मैनेजर हम लिनक्स में कैसे ओपन कर सकते हैं, टॉप की मदद से। टॉप प्रेस कर दिया तो ये रहा हमारे सामने टास्क मैनेजर। यूजफुल कीज इनसाइड इट, क्यों? अगर हमें किसी को क्विट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर चेक करता हूँ, अगर मुझे इसको क्विट कर लिया मैंने, किले प्रेस के लिए हम यू के करते हैं, तो एम फॉर सॉर्ट बाय मेमोरी, पी फॉर सॉर्ट बाय सीपीयू। ये क्या सीखने जब हमें कोई प्रोसेस किल करनी होती है वगैरह पर, ठीक है क्या करें। ये रहा प्रोसेस की आईडी वगैरह, जब हमें इसको किल करनी है तो हम लिखते हैं ना पी किल, फिर देते हैं प्रोसेस आईडी। क्या सीन है अभी सुन रहा? प्रोसेस आईडी पर मैं लिख दो यार 744, तो ये किल हो जाएगी। अगर मैं चेक करूँ तो किल हो गई, क्या अब नहीं सुन के इस चीज़ है ना, हम किल कर सकते प्रोसेस को जो हमें नहीं चाहिए सब। और कुछ देखे जो मैं अभी टॉप बताया, इसका एक और एच टॉप है, लेकिन इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर मैं इंटर दूंगा ये दिखता है। रिमोट इंस्टॉल मुझे भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट राइट नाउ, बट यू कैन प्रैक्टिस इट दैट। जैसा विंडोज में तुमने ट्रबल शूटिंग, ठीक है ना, ट्रबल शूटिंग करनी, ये कभी यूज़ किया होगा ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क में रहता है कभी कुछ तो हम ट्रबल शूट करते हैं, तो वैसा ही एच टॉप काम करता है। बहुत यूजफुल है, ट्रबल शूटिंग में काम आता है, सो इट विल बी यूजफुल। अब क्या सर, अगर मैं किल कर रहा हूँ किस समय प्रोसेस को ओपन करूँ, फिर अभी प्रोसेस आईडी 1 है, रूट कैसे चाहिए, रूट 1 2 3 वगैरह है ना, मैं लिखूंगा डायरेक्ट किल किल 1, तो जो प्राइस होगी वो किल हो जाएगी। हालांकि मैं किल करते करते और जाऊंगा पता नहीं, सब प्रोसेस किल हो जाएंगे, इसमें क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए CPU कितना परसेंटेज ले रहा है, सब लेंगे से। अब स्ट्रॉन्गर कोई प्रोसेस ऐसी होती है जो एग्जीक्यूट होगी भाई, किल नहीं हो रही है, अब कैसे नहीं रहा, उसको फोर्सफुली किल करवाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किल -9, -9 पढ़ो -9, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ आना चाहिए क्या यूज़ करते हैं -9, फिर अपना PID दो, उसको किल करवाना है,
वन को हो गया खलास। ये कहाँ पे हमें यूज आ सकते हैं डेली यूज? टू स्टॉप प्रोग्राम दैट्स फ्रोजन और कंज्यूम टू मेनी रिसोर्सेस। एडवांटेज क्या है इसके? गिव्स कंट्रोल टू द यूजर विथआउट स्टार्टिंग द सिस्टम। भाई क्या सीन है, कभी हमारा लैपटॉप, हमारी स्क्रीन, हमारा सिस्टम, पीसी वगैरह फ्रीज हो जाता, हम अटक जाते हैं भाई, हमें फिर स्टार्ट करना पड़ता है पावर अप। वहाँ भी डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन करो, देखो कौन सी प्रोसेस ज़्यादा है, सीपीयू वगैरह के सोर्सेज ले रहे हैं, उसको किल कर दो। किल के लिए क्या, डायरेक्ट किया LL1। अगर वैसा भी नहीं हो जाए, किल 9 लगा दो, -9 करके खलास, फिर वो जिंदा नहीं हो जाएगा, वो मर जाएगी। अब कुछ जॉब कंट्रोल सीखते हैं ना, जैसा कि बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चल रहा है, खुद से कस्टमर विजिबल है एलिमेंट्स, खुद से तुम कोई प्रोसेस को बैकग्राउंड में भेजना चाहते हो, फॉरग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड वगैरह में, उसके लिए कुछ कमांड्स है, जैसा कि मैं तुम देखूँ, स्लीप 100, ये देखो, जो पहली प्रोसेस एक जो इसकी PID है, ये चेक ये चेक क्या करेगा 100 सेकंड के लिए। और लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो किसी की PID 1 है, ये प्रोसेस ना बैकग्राउंड में चले, तो इससे हम बैकग्राउंड में भेज सकते हैं किसी प्रोसेस को, और वहां से वापस ला सकते हैं फोरग्राउंड में। सब कैसे करते हैं आज देखेंगे, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक चीज कर सकते हैं हम, नाइस कमांड का यूज कर सकते हैं। अभी नाइस कैसी है मैं बताता हूँ। नाइस एक ऐसी कमांड है जिससे हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। नाइस इज अ कमांड बाय व्हिच वी यूज सेट प्रायोरिटी ऑफ एन प्रोसेस। अब उससे क्या फायदा है, कोई प्रोसेस में चाहे ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा कि वो टाइम खा रहे हो, नाइस कमांड के जरिए उसकी एग्जीक्यूशन बढ़ा सकते हो, उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है रिनाइस। रिनाइस रिनाइस अक्सर ज्यादातर किस लिए यूज करता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी चेंज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस। ये चेंज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस जो नाइस है, ये भी प्रायोरिटी सेट करती है लेकिन लोअर प्रायोरिटी। मैं अगर लिखूंगा नाइस N10, N10 क्या दिन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसी को रिनाइस कर दूँ, रिनाइस -N5 करके, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है भाई, और उसका ID दूंगा, तेरे कोलोजन आउटपुट आ गए, इसलिए। अब इसका क्या सीन है भाई, ये रिनाइस, ये प्रायोरिटी चेंज हो रही है, बस प्रोसेस ID बता दो, ID लिख लिया मैंने 1, 1 प्रोसेस ओल्ड प्रायोरिटी 0, नियर प्रायोरिटी 5, बैड प्रोसेस ID वैल्यू 1 था ही नहीं, इसे चेक करना था। कोई ID था, ID नहीं लिखना था, डायरेक्ट 1 लिखना था ना, मैं ID का ही लिखा। आई एम आल्सो गेटिंग कंफ्यूज समटाइम्स। तुम लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत के बाद जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से समझ आएगा। ज़्यादातर ये डेली लाइफ यूज में ही नहीं होता है, जब मुश्किल काम होता है ना, जब अटक जाता है सिस्टम वगैरह, तब ये काम है। इसलिए मैंने पहले ही बोला, अभी तक जो पढ़ रहे थे ना वो था मक्खन, ये थोड़ा जहर है एक्सपायरी वाला, हम पे। ओल्ड पी 85, न्यू P85, लोड एंड सिस्टम। अभी क्या करता हूँ, आप टाइम, ये अभी का टाइम है 30 मिनट्स, 29 मिनट्स हो गए इसका। वन यूजर लोड एवरेज 0.00018, ये सीन। फिर क्या करते हैं, कभी तुम्हारा सिस्टम ऑन ही रहता है, चेक करना है कब से ऑन था, कितने यूजर थे इसमें, कितने यूजर ने किया, लोड एवरेज क्या था, यूजर क्या 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 हो सकता है। एक होता है यूजर ग्रुप, जब हम पढ़े थे ना परमिशन के बारे में, वही अदर्स, सब पूरा डिटेल निकल जाएगा अब टाइम। फिर क्या सीन है, और ये क्या है,
पी ग्रिप, ये कमांड कहाँ यूज करते हैं? पी, इट फाइंड पी आई डी बाई नेम। मैंने फायरफॉक्स यूज किया ना, मैं लूंगा पी ग्रिप फायरफॉक्स। देखो फायरफॉक्स की आईडी निकलेगा फाइनल में, और ये अच्छी कमांड काम आएगा। ये बहुत ही डेली लाइफ काम। पी ग्रुप फायरफॉक्स। अभी मुझको इसको किल करना है, मैं लिखूंगा पी किल फायरफॉक्स। ले भाई ऊपर देख लिया होगा, फायरफॉक्स गया खलास। मैं फिर से ओपन करूंगा फायरफॉक्स, तुम ध्यान रखो, या ना फायरफॉक्स ओपन हुआ। ट्रबल शूटिंग मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, बस तुम लोगों को दिखाना फायरफॉक्स ओपन हुआ देंगे। अरे भाई बंद हो गया, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा पहले फायरफॉक्स पे। अब इसकी आईडी ये है क्योंकि किल हुआ था ना, अब नई से शुरू 923। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पी के, अगर मैं डायरेक्ट आईडी से कोशिश करूँ तो शायद मैं गलत हूँ। देख लो भाई, pickle Firefox, it kills immediately the processes which are going under Firefox, the processes which creates Firefox, the instances which creates Firefox, the threads which create Firefox, they all will have kicked. Element, finish। अभी क्या सीन है, अभी मैं तुम्हें समराइज करके बताऊंगा जो हम पढ़े ना। मुझे पता है बहुत सारों को समझ नहीं होगा, नया कंसेप्ट है, और मैं दावे के साथ बताता हूँ यूट्यूब पे शायद ही तुम्हें इस बारे में वीडियो मिले, बहुत कम ही मिलेंगे। आई नो दैट। अभी जो समरी में बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, रिपीट करना। अगर हमें चेक करना है इफ ए प्रोग्राम इज रनिंग, इफ वी हैव टू चेक इज अवर प्रोग्राम ऑन रनिंग, तो हम क्या लिखना है, पी एस जी, कि जो हमें ग्रिप कमांड के जरिए चेक करें इज अवर प्रोग्राम रनिंग और ना। रूट 843 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर हमें मॉनिटरिंग करना है विच ऐप इज शोइंग स्लोइंग आवर पीसी, विच ऐप इज स्लोइंग आवर पीसी, तब कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, टॉप और एच टॉप, ये तो यूज कर सकते हैं। कि हमें चेक करना है कौन सी ये काम कैसे करता है, मैंने बताया था ना। आई टोल्ड यू दैट जस्ट लाइक विंडोज, वो क्या सीन था, भूल ही गए। ये वाला टास्क मैनेजर, हाँ, टॉप और एच टॉप, वही सब। अगर हमें स्टॉपिंग है, फ्रोजन है, कोई ऐप बैकग्राउंड में फ्रोज हो गई है, फ्रोज बोले तो अटक गई है बस, तो उसको कैसे करते हैं, कि -9, फिर पी आई डी दो, उसकी आईडी दो, या डायरेक्ट पी के ऐप नेम, पी के ऐप नेम, यहाँ पे आ रहा है बीच में, ठीक है। इन दोनों में से एक भी कमांड यूज करो, काम हो जाएगा। अगर हमें रनिंग लॉन्ग कमांड्स, ठीक है, रनिंग लॉन्ग कमांड्स इन बैकग्राउंड, कैसे, कमांड फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा ls @ ये मैंने कमांड लिखी, फॉर जॉब्स, पुलिस जाकर तो फिर वैसा सीन, मतलब क्या करना था, कमांड ऑन पीछे माई मिस्टेक। ये कैसे यूज करते हैं, देखो सिंटेक्स में बता रहा था, मुझे इंटर नहीं करना था। मैं भी जीवन में कमांड, एक कमांड लिखे हमने, फिर लिखिए @ऑपरेटर, फिर जॉब्स, जॉब्स पढ़े थे ना हम ऊपर, वैसा से ये रहा सिंटेक्स। इस चीज़ से क्या हम बैकग्राउंड में कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और next, if we have to check health on the server, checking system health, then we use this uptype command, or we can also go for top command. Another thing is if running backups without selling PC, if we have running backups without slowing PC, बैकअप भी रन करना है, पीसी को भी स्लो नहीं करना है,
तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नए से यहाँ से प्रायोरिटी सेट करते हैं, जो हम पढ़े थे, प्रायोरिटी 10 कर दो, जो तुम्हें बैकअप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बैकअप डॉट एस एच, इसको रन कर दो, की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। सिस्टम पे चलो नहीं, ज़्यादा ज़्यादा काम कब आता था, हैवी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी, when we had to execute a heavy script on our PC or system, that time it should be useful for us. So let's discuss advantages of this process management in Linux. First one is resource control, stability, efficiency, उनको फर्स्ट पे देंगे, efficiency, monitoring, another one is flexibility. These are the advantages of process management in Linux: source control, stability, efficiency, monitoring, and flexibility. मुझे पता है वीडियो लंबी होगी, लेकिन क्या करें, डिटेल में समझाना था। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसेस मैनेजमेट कमांड्स। थैंक यू।